Being a student, are you confused about when and how to start our own savings, when to start our own investment, when we should plan our own portfolio, what is compounding, how to make money work for you? Hello everyone, this is Priyanka Chen. Welcome back to my channel, The Life Baker. If you're new to this channel, don't forget to subscribe and click on the bell button to get notified on my every upload. I got a lot of queries related to मैम हम लोग को कब स्टार्ट करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट, हम लोग कैसे सेविंग्स करें. सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग at your early age, when you are 20, when you are a college student, how to install independence in ourselves. So let's get started. Before I talk about investing, let's first understand the meaning of savings. Savings means to keep or store for future use. And investing means to put your money into any financial schemes, insurance, PPF, mutual funds, SIPs, equities, etc. to earn profit out of that. With the term savings, I don't mean to say to put money into your savings account. It won't earn you much. It won't grow as much as your inflation rate. Okay, so the idea behind savings is to put in such schemes which will earn you better, earn you more than your inflation rate. अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है डे बाय डे जो इंक्रीज हो रहा है आपका प्राइस एंड आर परचेजिंग पावर इज़ डिक्रीजिंग. ओके, जो चीज़ हम लोग पहले 100 रुपया में ख़रीदते थे वो अभी शायद 500 रुपया का मिल रहा है. सो दिस इज़ इन्फ्लेशन एंड टू बीट इट वी शुड ट्राई टू अर्न मनी फ्रॉम द मनी वी सेव, वी इन्वेस्ट. At the onset, we need to understand the value of money, the importance of money, the importance of compounding. It is magical. The way your money can grow multiple times and can give you a very heavy amount in future is magical. The early you start, early you will become independent. You will be able to use maximum benefit of compounding. At this age, when we are a student, we don't talk much about money. Why? When we meet, when we go out, हम लोग बात ज़्यादा नहीं करते. हमें लगता है कि वो क्या सोचेगा, सामने वाला क्या सोचेगा. आई एम टॉकिंग सच डम क्वेश्चन, सच सिली क्वेश्चंस. बट नो, दिस इज़ द टाइम when you can talk, you should talk, when you should talk about money, when you should increase your financial literacy, the way the money works in the market. आप जब सब लोग मिल के बात करोगे तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा, तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. And at this young age you can experiment, you can try different products. In that you can diversify your fund. Now you'll ask why at this age we should start investing. We are small, we are young. कॉलेज के बाद तो कमाना ही है, काम करना ही है. Now we can just enjoy, have fun, मस्ती करते हैं. No, this is the correct age. This is the perfect age to start your own investment. थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करने का आदत डालो. सेविंग्स करने का हैबिट अभी से होगा तो फ्यूचर में आपको ही फ़ायदा होगा. You are young, you are energetic, you can use your brain, your intelligence in different things. You can do your own research. बहुत कुछ कर सकते हो इस एज में. आई रिग्रेट आई डिड नॉट डू, आई वॉज नॉट टॉट दिस. मेरे को कुछ पता नहीं था ये सब चीज़ के बारे में. सो आई रिग्रेट इट नाउ, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू रिग्रेट लेटर इन योर लाइफ. नाउ यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू डोंट हैव ड्यूटीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप आराम से you can try your hands on many things at this age, because at this age you spend more on your wants than your needs. आपको वो चीज़ चाहिए, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की. At this age you should try to live like very normal person, जिसको कम खर्चा करना है हर जगह में, क्योंकि आपको उस पैसा से, उस मनी से एक्सपेरिमेंट करना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपना लर्निंग्स बढ़ाना है. Live like a very normal person. Don't waste your money in any unwanted expenses. Check on your expenses daily. Every month you should check, every week you should check. जहाँ पे आप कट डाउन कर सकते हो वहाँ पे आप कट डाउन करो. बिकॉज आज आप अगर सेविंग्स का आदत डालोगे तो आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे. एंड 10 years ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स अ बिग अमाउंट. बहुत फ़र्क है 10 साल का कंपाउंडिंग अमाउंट. इन 10 years आप कितना डबल कर सकते हो अपने मनी को. आप अभी स्टार्ट करोगे और आप 10 साल बाद स्टार्ट करोगे उसमें. नाउ यू विल आस्क हाउ टू स्टार्ट. हमें तो पॉकेट मनी मिलता है, थोड़ा ही मिलता है, इतना तो खर्चा हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नो, आपको जितना भी पॉकेट मनी मिले उसमें से पहले आप 500,000 जितना भी मिलता है उसका 20% 30% आप साइड कर लो. इतना तो मेरे को सेव करना है.
बाकी जो होता है उससे अपने खर्चे को चलाओ। दिस इज़ द वे यू स्टार्ट सेविंग्स। पॉकेट मनी कितना भी मिले आप उसमें से 500 रुपीज़ बचा सकते हो, 200 रुपया बचा सकते हो, थोड़ा बचाओ, आदत डालो। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट दिस हैबिट, आफ्टर यू गेट अ जॉब, आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग, वो हैबिट रहता है एंड देन यू विल सी वो हैबिट के कारण आप 20% ऑफ योर इनकम आप एवरी ईयर बचाते हो। स्टार्ट टुडे। जो भी आपको पॉकेट मनी मिलते हैं एवरी मंथ, उसमें से 20% या 10% बचाओ। कहाँ इन्वेस्ट करना है आई विल डिस्कस, बट एक बार के लिए वो आदत डालो। उसको ड्रॉअर में नहीं रखना है, उसको ऐसी जगह में डालना है जो आपको इंटरेस्ट दे, वो पैसा आपको और पैसा कमा के दे। पहले तो कुछ थंब रूल्स होते हैं, जैसे आपका जो भी इनकम है उसका 50% वी जनरली से कि नीड्स में डालो, 30% वॉन्ट्स में कि मेरा मन है, आई वॉन्ट इट, एंड 20% आप सेव करते हो। जो वॉन्ट्स वाला परसेंटेज है, जब भी आप उसको खरीदने जाओ, थिंक अगेन। एटलीस्ट 1 या 2 दिन का टाइम लो कि वो एक्चुअली में आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बिना चल जाएगा क्या। इफ़ यू कैन डिफ़र इट देन डिफ़र इट। सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ अनवांटेड है उसको आप कट करोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। सो देयर आर फ्यू टिप्स विच यू शुड यूज़ ऑन योर सेल्फ, ताकि बहुत स्मूथली आपका 10 ईयर्स निकले, 20 to 30 ईयर्स का एज, व्हेन यू आर स्टूडेंट, ग्रेजुएशन पूरा करोगे, फिर आपको जॉब मिलेगा। वो एक ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें ना आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ना आपके ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, ना कोई चीज़ का बर्डन है। ओके, यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योर मनी, डाइवर्सिफाई योर मनी सेफली। हम लोग डाइवर्सिफाई ऐसे करेंगे, कुछ सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स में है, कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में है, कुल मिला के आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल जाए। दैट इज़ वॉट यू शुड थिंक ऑफ। आई डिड दिस मिस्टेक, मैंने बहुत गलतियाँ की अपने 10 ईयर्स में। आई डोंट वॉन्ट यू टू रिपीट द सेम। सो वेस्ट मत करो अपना टाइम, स्टार्ट इट टुडे, राइट नाउ। चेक ऑन योर इनकम, चेक ऑन योर एक्सपेंसेस, चेक ऑन योर सेविंग्स एंड स्टार्ट। अब आप किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट इट। तो पहला रूल तो है कि आप इस ड्यूरेशन में कोई लोन मत लो अपने सर पे। कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, वो डेब्ट्स का बहुत बड़ा असर होता है अपने माइंड में। सो ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ लोन्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, व्हेन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, आपको एक टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है, इट्स अ मस्ट। टर्म प्लान क्यों अभी लेना है, बिकॉज यू आर स्मॉल, आप छोटे हो, आपका रिटर्न्स अगर लगने लग गया है, आपको टर्म प्लान इजीली मिल जाएगा। बहुत छोटे से प्रीमियम में आपका बहुत हेवी कवरेज मिलेगा। व्हेन यू आर यंग, आपका प्रीमियम अमाउंट बहुत कम होता है इन कंपेयर टू व्हेन यू आर व्हेन योर एज इज़ मोर, बिकॉज अभी यू आर यंग, इट्स सेफ। वो लोग आपको बहुत छोटा सा प्रीमियम में हेवी कवरेज दे देते हैं। तो इसीलिए ये फर्स्ट 20 to 30 के बीच में आपको अपना टर्म प्लान करना है फर्स्ट। सेकंड, एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी को भी, तो इसीलिए बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, इसका भी आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी छोटा छोटा अमाउंट लगता है, ज़्यादा हैवी नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, गो फॉर इट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोविडेंट फंड जिसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इंटरेस्ट रेट इज़ गुड इनफ, 7.1% तक है, आपको टैक्स एग्जेम्पशन पूरा मिलेगा। आपका जो इंटरेस्ट आप ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस अर्न करोगे वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। तो आप 21-22 ईयर से जब अर्निंग करना चालू कर देते हो, आपका रिटर्न्स, इनकम टैक्स का रिटर्न्स लगता है, तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 1.5 लाख का लिमिट होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो। व्हेन यू आर वेरी स्मॉल, अभी आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, आप 1000 रुपया से स्टार्ट कर लो पीपीएफ को। ग्रेजुअली जैसे आपका इनकम बढ़े उसको आप बढ़ाओ 15 ईयर्स तक का ड्यूरेशन, देन 5 ईयर्स आप और एक्सटेंड कर सकते हो। उस समय जो आपको पैसा मिलेगा उसको आप वापस से री इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो यू वोंट बिलीव व्हेन यू आर 60-65 ईयर्स ओल्ड इट कैन अमाउंट टू करोड्स। ओके, इसीलिए पीपीएफ इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज बहुत बेनिफिट्स है, टैक्स एग्जेम्पशन है, इंटरेस्ट जो आप अर्न करोगे वो भी सारा का सारा एग्जेम्प्टेड है। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। आई प्रेफर टू स्टार्ट विथ पीपीएफ।
नो डाउट बहुत सिक्योर है, इस एज में इतना सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं है, बट आपका PPF इज़ अ लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो इसीलिए आप उसमें डालते भी रहोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग हॉराइजन, लंबा टाइम। उस समय तक इतना हैवी अमाउंट जमा हो जाएगा कि आपको फील भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना जमा कर लिया। बट डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज योर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स इन PPF every year. You can start with, mutual funds, SIPs, if you are not comfortable directly investing into equities in the market. So SIP is like, systematic investment plan, जिसमें आप छोटा छोटा अमाउंट एवरी मंथ डाल सकते हो, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 1000 रुपीज़, whatsoever is comfortable for you. So such investments can be done अभी इस एज में। तो इक्विटीज़, अगर आप डायरेक्टली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो कंपनीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी करना, इट्स रिस्की नो डाउट, बट इफ़ यू बेट ऑन गुड कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशंस जिसका फ्यूचर अच्छा है, तो देयर इज़ नो वरीज अबाउट इट, एंड एट योर एज यू कैन टेक अ बिट ऑफ रिस्क। FD इज़ अ नो, बिकॉज FDs में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें फिर टैक्स भी लग जाता है, अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा ही कम मिलता है आपका इनकम। सो नो पॉइंट इन्वेस्टिंग इन FDs। व्हेन यू ग्रो ओल्ड तब डालना इज़ ओके, बट एट योर एज नॉट नीडेड। यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड बॉन्ड्स, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना, आप आराम से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो, एनी डीमैट अकाउंट से आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो। इफ़ यू वांट माय रेफरल ID ऑफ मोतीलाल ओसवाल, आई हैव माय डीमैट अकाउंट देयर, आई विल ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओपन योर अकाउंट फ्रॉम दैट रेफरल ID, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड देन इफ़ यू हैव मोर फंड्स अवेलेबल, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। It's a bit risky, but you can try your hands on that. Next, when you start earning, आप एक emergency fund बनाओ of 2 to 6 months का सैलरी, उसमें थोड़ा करके डालते रहो। अल्टीमेटली जब आपका इमरजेंसी फंड में अराउंड 2 to 6 मंथ्स के सैलरी का अमाउंट रहता है, उतना अमाउंट आप हमेशा एक फ़ंड में रखो विच इज़ रेडिली अवेलेबल टू यू। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मेडिकल और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस, तो आपके पास रेडी अवेलेबल कैश होगा, और थोड़ा कैश रहना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स इन सच स्कीम्स जहाँ पे आपको हाथों हाथ पैसा नहीं मिले, इसलिए इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। एंड द लास्ट वन इज़ मेक अ बजट फॉर एवरीथिंग। जिस महीना में भी आपको लगता है कि आपने ज़्यादा एक्सपेंस कर लिया, क्लोथ्स में, खाने में, पीने में, कट इट डाउन। एवरी वीक जस्ट मॉनिटर योर एक्सपेंसेस, कट इट डाउन इफ इट वॉज नॉट नीडेड। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, try to understand the value of money, try to understand the importance of money, let money work for you. I really hope after this video you'll start realizing the importance of money, you'll start saving for your future. So start your savings today, start your investments today. Maybe your savings can help a person in need in future. So students, that's all on how to start your investments with small amount. Talk about finances, talk about financial literacy with your parents, with your friends, with your colleagues. Don't be ashamed of it. And believe me, starting at 20s is the best decade to understand and start your investments. And with this, I really hope you like this video. Try to share with your friends. Thank you.